Hello and welcome back, friends, to another episode of Money Mindset Mastery with Vikas Joshi, Lab 2 Beyond Passbook Balance. Friends, this series is dedicated to transform your financial future one mindset shift at a time. Here we explain the financial terms, break down the key concepts so as you can accumulate money and build your financial future. So, friends, rewire yourself, take charge of your money so that you start making money and enjoy the financial abundance. ये श्रृंखला आपके वित्तीय भविष्य को बदलने के लिए समर्पित है। ये एक कोशिश है कि आप पैसा बना सके और फाइनेंशियल अबंडेंस एंजॉय कर सके। सो इन टुडेज टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग द लॉज ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस इज द बेसिक पार्ट ऑफ लाइफ। हम जब फाइनेंस सीखते हैं तो हमें चाहिए कि व्हाट आर द फाइनेंशियल सक्सेसेस। द मनी माइंडसेट मास्टरी बियॉन्ड पासबुक बैलेंस इज नाउ डीलिंग with this topic today. We have all heard the advice: save more, spend less, invest wisely. But real financial success goes beyond the passbook balance. True wealth begins in the mindset, not just in the mathematics. And those who master money know it's not just about income, it's about understanding the laws of financial success. In today's episode of Money Mindset Mastery, we'll break down the timeless principles that separate financially free people from those who just keep working harder and harder without real growth. ऐसे कई लोग हम देखते हैं कि बहुत सारे मेहनत करते रहते हैं लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही है, फिनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रही है और वो चिंतित ही रहते हैं हमेशा। अरे कुछ भी इतना मेहनत करता हूँ पैसा मिलता ही नहीं है ना। एक कॉमन फ्रेज हमारी जिंदगी में कई बार हमने सुनने को मिलती है, कई बार हमारे घर घर में भी होता है। सो व्हाट इज दैट? द लॉ ऑफ बिलीफ। द मनी बिगिंस इन माइंड, दैट इज व्हाट वी स्टार्ट विथ। Every financial journey starts with one invisible force, your belief system. If you believe money is hard to earn or that it's not for the people like us, मन में अगर ऐसा विचार आ रहा है कि नहीं यार पैसा मेरा कमाना बहुत ही मुश्किल है और या फिर हम जैसों के लिए ये बना ही नहीं है ना, वी आर ऑन दैट मोड। जब नहीं मिल रहा है, सक्सेस नहीं आ रहा है, तो वी आर ऑलवेज ऑन द निगेटिव मोड। यू विल सबकॉन्शियसली ब्लॉक द अपॉर्चुनिटीज, तो अपॉर्चुनिटी ब्लॉक होती जाएगी। बट इफ यू बिलीव दैट वेल्थ इज पॉसिबल, ethical and even spiritual, your actions align with the belief. Mindset shapes behavior, behavior shapes results. अगर मन में विश्वास हो कि नहीं कर सकते तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिखने लगती है। सो माइंडसेट शेप्स अपना बिहेवियर बदलता है। सो फाइनेंशियल सक्सेस बिगिंस व्हेन यू स्टॉप सीइंग मनी एज अ प्रॉब्लम and start seeing it as a tool to create, contribute and grow. जब तक दिमाग में नहीं होगा, दिल में नहीं होगा, तो हमें उस राहें दिखाई नहीं देंगी. So it will not begin to contribute, not begin to grow. The law of value the money follows contribution. Money doesn't just come to hard workers. नहीं यार, जो बहुत मेहनत करते हैं उनके पास बहुत पैसा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. So just reshuffle your mind. ऐसा नहीं होता है. Now, money flows to the creators. If you want more income, ask how can I solve bigger problems? How can I serve more people better, faster? Whether you are a teacher, a designer, a trader, or entrepreneur, your income will grow in direct proportion to the value you bring to the table. Don't chase money, chase value, and money will follow you. Now, you see, this is what the basic of life is. हम हमेशा पैसे के पीछे भाग रहे हैं। नहीं, आप वैल्यू दो। जैसे आजकल हम रोजमर्रा की जिंदगी में हम क्या चाहते हैं, यू व्हाट वी टॉक इन आवर लाइव्स, इन आवर डेली लाइव्स, अपने घर में भी बातें होती है। वो क्या होता है, पैसे की कीमत नहीं मिली, मैंने अच्छी चीज खरीदनी चाहिए लेकिन क्या पैसा मेरा नहीं मिला उतना जितना मुझे, जो वैल्यू मुझे चाहिए थी उस आइटम से या उस चीजों से, वो नहीं मिली. What is that? Because you didn't get the value for your money. Hence, you are on the verge of saying that your money is not getting the value. So you should concentrate more on value. What are you concentrating on? You are concentrating on money. No, friends. You should concentrate on what value you are giving. That will be the basic thing, on the starting point for generation of money.
अगर आपके पैसे की वैल्यू नहीं मिल रही है, मान लो आप किसी एक एग्जाम रोजमर्रा की जिंदगी का एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको, अगर मैं सब्जी लेके लेने चला गया किसी सब्जी वाले के पास और वहां की सब्जी मुझे अच्छी नहीं मिली, तो मैं दोबारा उसके पास नहीं जा रहा हूं। व्हाई? बिकॉज माई मनी डिडंट गेट माई वैल्यू। सब्जी अच्छी नहीं मिली तो मैं दूसरे के पास चला जाएगा। Now you see, when the options are there, I am finding the value. So now if the vegetable vendor would have given the value for my money, he would have got the money. So that is what the basic concept is, friends. Concentrate on the value you give. Concentrate on what you are delivering. Concentrate on the value, not on money. So the law of clarity should be there. You can't grow what you don't know. Many people say, I want to be rich. But how much rich you want to be? By when? Through what? For what purpose? So these things you have to answer. अगर आपको पता नहीं है कितना अमीर बनना है, कब तक बनोगे, क्या वजह है, व्हाट इज योर व्हाई, अगर ये पता नहीं है तो कैसे आप एनालाइज करोगे कि आप अमीर बन गए हो, नहीं बने हो, बनना चाहते हो, क्या है, डोंट नो. सो वैल्यू द गोल्स. The goals that lead to vague results are not at all helping you. So the vague goals will not lead to clear results. So vague goals will lead to vague results. क्योंकि पता ही नहीं है मुझे अमीर बनना है, अरे वो ठीक है, क्लैरिटी नहीं है ना दिमाग में. सो पहले था कि वी शुड वैल्यू आवर व्हाट यू आर डिलीवरिंग, देन यू वैल्यू your clarity. You should have very clear views on where you have to reach and how are you going to reach. What is the purpose you have started this process for? If that is clear, then you are on the right path. So financially successful people have clear financial goals, financial targets for income, savings, investments, freedom. ये अगर clear है, then we are achieving that. Take time to define your monthly cash flow target, your desired lifestyle, योर इन्वेस्टमेंट माइलस्टोन्स. ये जो सारी चीजें हैं आपने अगर लिखित में कर, ये ना फॉर मेनी ऑफ द टाइम्स आई हैव सीन दैट पीपल से नहीं मेरे दिमाग में है, मुझे पता है सब, आजकल मेरे मोबाइल में सब कुछ होता है. डोंट कीप दैट वे फ्रेंड्स. आई वुड सजेस्ट जॉट इट डाउन, राइट इट डाउन. व्हाट इज योर मंथली कैश फ्लो टारगेट, क्या है आपका कैश फ्लो, मतलब एक्सपेंसेस कितने, इनकम कितना है, क्या कर रहे हो, होना चाहिए. योर डिजायर्ड लाइफस्टाइल अगर बदलनी है तो आपके डिजायर्ड लाइफस्टाइल की तरफ जाना क्या चाहते हो, तो आपको पैसा जनरेशन कैसे करना है पता चलेगा. दैट इज व्हाट द क्लैरिटी इज. योर इन्वेस्टमेंट माइलस्टोन्स, कितना इन्वेस्ट करोगे एक साल में, तो यू हैव टू ब्रेक इट डाउन टिल 1 मंथ, बिकॉज इफ यू आर हैविंग अ मंथली इनकम प्रोसेस then you should plan your investments for monthly basis. Your retirement number or your retirement funds, that number you have to fix. कितना चाहिए आपको रिटायरमेंट तक? नहीं अभी तो बहुत समय है रे, अभी तो मेरी जस्ट शुरुआत हुई है. वही शुरुआत से आपने आपको रिटायरमेंट का प्लानिंग, दैट शुड बी द क्लैरिटी कि इतना मुझे होना चाहिए, एंड देन ओनली यू कैन रीच देयर. बिकॉज वेग, अरे होता है सबका होगा तो वैसे मेरा ही होगा, अरे ये कौन सा टारगेट है, एंड हाउ आर यू गोइंग टू अचीव दैट, बिकॉज देयर इज नो टारगेट. जिससे जब सबका होगा तो तुम्हारा मेरा, सबका नहीं हुआ तो नहीं, तुमको भी नहीं मिलने वाला. सो यू आर हैप्पी विद दैट? नो, बिकॉज एट दैट मोमेंट यू विल बी कर्सिंग एवरी अदर पर्सन देन योरसेल्फ, इवन गॉड. यू सी, जब हमको कामयाबी नहीं मिलती तो हम क्या बोलते हैं, भगवान ने मेरे साथ ऐसे ही किया. भगवान ने नहीं किया, तुमने नहीं किया. व्हाई? बिकॉज यू डिडंट हैव द क्लैरिटी ऑफ द फाइनेंस. सो यू शुड हैव दोस क्लैरिटी. व्हेन यू गेट स्पेसिफिक, योर ब्रेन गेट्स टू वर्क. आपका ब्रेन भी आपके इंस्ट्रक्शंस की राह देख रहा है. व्हाट यू इंस्ट्रक्ट हिम, नाउ ही स्टार्ट्स परफॉर्मिंग. अगर आपका ब्रेन परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, मतलब आपने उसको क्लियरली गोल्स डिफाइन नहीं किए, बताए हैं, सो ही विल नॉट स्टॉप, ही विल नॉट वर्क. वेगी है तो उसको भी पता नहीं, ही इज ऑल्सो कंफ्यूज. ही कौन? ब्रेन. बिकॉज यू आर नॉट communicating to your brain what you require. Hence, the brain will start functioning as you instruct. So, the law of control comes. Take charge of your finances. If you don't control your money will control you. Natural है. अगर पैसा किसका? आपका. किसने देखना चाहिए? आपने. अगर तुम नहीं देखोगे तो कोई और देख रहा है.
सो पैसा ही आपको कंट्रोल करता चला जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। करना क्या चाहिए, डिलीवर क्या होना चाहिए, वैल्यू। हो क्या रहा है, हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसा आगे भाग रहा है, ऐसा नहीं आ रहा है। हम एफर्ट्स पे एफर्ट्स किए जा रहे हैं, बट वी आर नॉट इन द करेक्ट डायरेक्शन बिकॉज क्लैरिटी नहीं है और हमारा कंट्रोल नहीं है। सो स्टार्ट बाय ट्रैकिंग योर इनकम एंड एक्सपेंसेस, दैट इज द बेसिक थिंग। यू हैव टू कट शॉर्ट दोज एक्सपेंसेस विच आर रिडंडेंट, नहीं चाहिए तो हमें वो चेक करने हैं। सेट द बाउंड्रीज टू डेट। कर्जा लेना ठीक है, होम लोन लेते ही है, एजुकेशन लोन लेना पड़ता है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट ऑन फ्री जैसे क्रेडिट कार्ड, अरे बाप रे, पर्सनल लोन, अरे बाप रे, ये बहुत डेंजरस लोन्स है। These should be rarely taken. They are costly loans, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो आपका बैलेंस नहीं हो रहा है इनकम और, क्योंकि पहले शुरुआत में आपने लोन लिया तो अच्छा लगा, लेकिन लमसम आ गई, बट देन EMI आर गोइंग फ्रॉम द मंथली इनकम दैट यू हैव नॉट कंट्रोल फॉर। सो यू हैव टू सेट द बाउंड्रीज, बिल्ड हैबिट्स अराउंड बजटिंग, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। ऐसी हैबिट फॉर्म करनी पड़ेगी ना, तभी तो होगा। The foundation of wealth is not income, but it's discipline. Discipline होनी चाहिए तब, even if you earn less but expense more, you can grow faster than someone else who earns more but spends money. Financial freedom is not about how much you make, it's about how much you keep, grow and control. तो अगर आपके पास पैसा है तो उसको आप कैसे बढ़ाओगे, पैसे से पैसा कैसे बनेगा, ये जब आप समझोगे, then you can control your expenses. You have to grow कैसे होगा, जब सेव करोगे। सेव कब करोगे, जब आप कंट्रोल करोगे। क्या कंट्रोल करोगे, एक्सपेंसेस कंट्रोल करोगे, साथ में इन्वेस्टमेंट करते चले जाओगे, तभी तो इन्वेस्टमेंट का लॉ एप्लीकेबल होगा। सो द लॉ ऑफ लिवरेज वर्क वंस, अर्न रिपीटेडली comes when you start investing. So trading time for money has its limits. True wealth comes when your money starts working for you. That is the basic principle of money. Let money work for you. हम क्या कर रहे हैं, हम पैसों के लिए काम कर रहे हैं, but what you should do, the money should work for yourself. That is, this includes investment that generate passive income. पैसे से पैसा बनना चाहिए, इन्वेस्टमेंट डालिए तो उसमें पैसा बने। मैं घर पे सो रहा हूं चलेगा, but my money should generate more money. Hence, the first step is that don't keep much of the cash into your households. Deposit in the bank. फिर आप इन्वेस्ट कीजिए। We are dealing with these things in the later videos also. बैंक में डिपॉजिट करोगे तो एक इंटरेस्ट अर्न करता होगा, तो आपका पैसा जनरेट कर रहा है। That is important. So assets like property, stocks, royalties, इसमें डालिए। Digital content systems or businesses that run without you, learn to leverage your time, talent and tools. आजकल tools आपके हाथ में है। Don't waste your time on the things which you are able to get help from your technology. So don't just earn once, you earn again and again. आज मोबाइल पे सब कुछ अवेलेबल है, so you have to concentrate on that. इससे आप गलत ना करें, मिक्सअप ना करें, जो मैंने अभी बताया कि नहीं वो मोबाइल पे लिखा हो, मुझे मालूम है। नो, गोल्स आर टू बी रिटन डाउन। व्हाई यू आर अचीविंग, व्हाई यू वांट टू रिटन डाउन, पर्पस क्या है रिटन डाउन। कितना अमीर होना है लिख के रखना है, वो मोबाइल पे या दिमाग में ऐसे नहीं रहना, वो आपको लिखित में, क्योंकि वो क्लैरिटी होनी चाहिए। So you don't just earn once, you earn again and again once you start looking into it. Think beyond salary, build income, तभी तो हो पाएगा। इन्वेस्टमेंट से पैसा आना चाहिए, ये सोच आएगी तभी हो पाएगा। The law of growth तभी एप्लीकेबल हो जाएगा। So expand your financial capacity to earn more. You must grow more. ये होना चाहिए। अगर नहीं मेरी तो नौकरी है, उसके बाद तो मेरे पास टाइम नहीं होता है, तो एवेन्यूज आपने ढूंढे ही नहीं है पैसिव इनकम की। इन्वेस्टमेंट्स करोगे, इन्वेस्टमेंट्स माने क्या, पैसिव इनकम आ रहा है, आपने इन्वेस्ट करके रखा है पैसा, उसका डिविडेंड आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, यू आर अर्निंग मोर। सो दैट इज व्हाट आई मीन टू से, दैट यू शुड नो द लॉ ऑफ ग्रोथ। योर फाइनेंशियल लाइफ एक्सपांड्स एज योर माइंडसेट, नॉलेज एंड स्किल्स एक्सपांड। सो ये स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ेगी।
Make personal growth a habit. Read about money, learn more about investing, understand your taxes, stay updated with the markets. Don't wait for luck. Prepare with learning. तकदीर है, मैं यहाँ इतना वक्त मुझे मिलता नहीं है, नहीं तो मैं बहुत कुछ अमीर बन जाता। नहीं नहीं, वो तकदीर नहीं, वो तुम्हारा आलस है। यू आर नॉट वर्किंग फॉर योर सेल्फ, सो यू आर वेटिंग फॉर द लक टू टेक इट्स टर्न। डोंट वेट फॉर दैट, प्रिपेयर विथ लर्निंग। वेल्थ ग्रोज वेयर यू ग्रो। अगर आप ग्रो हो रहा है तो वेल्थ भी ग्रो होने वाली है। सो दिस इज व्हाट द हैबिट फॉर्म्स, है ना। सो द नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ हैबिट्स। सो द स्मॉल एक्शंस बिग रिजल्ट्स। छोटी इन्वेस्टमेंट, लेकिन इन्वेस्ट करना चालू किया तो अभी सालों बाद आपका बिग रिजल्ट मिलने वाला है। तात्काल अपेक्षाएं ना रखें, प्रॉम्प्ट आंसर्स नहीं आएगा। यू हैव टू वेट, nurture it, generate income. So wealth isn't built through one big event. नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। It's built through small daily choices. Save before you spend. पहले डिसाइड करो कि नहीं, इतना अमाउंट मेरा रोज हर महीने का स्पेंड सेव होना ही चाहिए। इन्वेस्ट रेगुलरली, इवन इफ इट्स स्मॉल अमाउंट, छोटी अमाउंट भी हो लेकिन इन्वेस्ट कीजिए। इंश्योरेंस में डालिए। अवॉइड इम्पल्सिव बाइज। हम जब भी किसी परचेसिंग फ्री में जाते हैं, स्प्री में जाते हैं, फ्री नहीं सॉरी, मॉल या कहीं जाते हैं तो हमको बहुत सारी चीजें नजर आती है और हमको लगता है ये भी लेना चाहिए, वो भी लेना चाहिए, एंड वी आर द बाइंग स्प्री। फॉर व्हाट रीजन यू आर बाइंग, नो आइडिया एट ऑल। दैट इज व्हाट आई मीन टू से बाय इंपल्सिव बाइंग। मुझे लगा लगना चाहिए, मुझे लगा उसके पास है तो मेरे पास होना चाहिए। नो नो नो, डोंट मिक्स अप योर नीड्स इनटू वांट्स और वांट्स इनटू नीड्स। कीप देम सेपरेट। अगर वांट्स है तो वो लंबा रहने दो, कोई प्रॉब्लम। नीड है तो उसे तुरंत खर्चा करना ही पड़ेगा। So don't make your wants as needs. That is what impulsive buying is of. So your daily money habits will define your future more than any single income spike. Small changes today create big freedom tomorrow. तो इतना चेंजेस करते जाओगे तो आपका यकीनन आज से तो बेहतर ही होगा। सो द लॉ ऑफ पर्पस आएगा। व्हाई फॉर यू आर डूइंग। Money with meaning multiplies. Money is not just for survival, it's for service. So when your financial goals are tied to a bigger purpose, they get stronger. तो पर्पस कुछ होगा, क्या रीजन है आपको, क्यों बनना है अमीर, तो वजह होगी। तो अगर वजह है तो नाउ यू विल स्टार्ट वर्किंग मोर कॉन्सेंट्रेटेडली, मोर एफर्टली, और यू विल टेक मोर एफर्ट्स इनटू इट। सो यू आस्क योरसेल्फ, व्हाट इंपैक्ट डू आई वांट टू मेक, क्या करना है। How will I use my wealth to help others? What legacy do I want to leave? Money flows more freely when it's aligned with a mission. Helping others is also an important part. It is also carrying some cost. अगर आपको बढ़ना है तो जो साथ में उनको भी बढ़ाना चाहिए, तभी तो आप बड़े बन जाओगे। अगर आप उनको सप्रेस करते रहोगे तो ना तो आप बड़े बनोगे ना वो बड़े बनेगा। The team will never be formed. So that is what I mean to say, that you should help others also to grow. So the purpose gives money the direction. Purpose है तो direction है। अभी we are not moving directionless, we are not wanderers, we have defined our goal, we have defined कि कितना अमीर बनना है और कितने सालों में बनना है। सो अभी लिखित में है तो आपको पता है कि इस महीने में आपको कितना काम करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना सेविंग करना है, एंड ऑन मंथली बेसिस आपको कितना पढ़ना है। सो दैट इज व्हाट द पर्पस इज, एंड हेंस दिस इज द डायरेक्शन द पर्पस हैज गिवन यू, एंड मनी विद डायरेक्शन बिकम्स अनस्टॉपेबल। अब ऐसा करते रहोगे, हर महीने के महीने करते होगे, तो नो वन कैन स्टॉप योर एक्यूमुलेशन ऑफ मनी एंड हेंस इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी एंड हेंस मनी जनरेटेड फ्रॉम मनी। सो द लॉ ऑफ पेशेंस वर्क, है ना, पेशेंस चाहिए ना इतने महीने के लिए। वेल्थ इज अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। क्विक मनी ऑफन कम्स विद क्विक लॉसेस। तत्काल चाहिए, अभी मैंने पैसा डाला तो तुरंत डबल चाहिए, तो वो लॉसेस होता है ना। कई ऐसे हम लोगों ने देखे हैं कि अभी अभी न्यूज में भी बहुत सारे चल रहे थे, फ्रॉडस्टर्स, मैं तुम्हारा मनी एक साल में डबल कर दूंगा। व्हाई आर वी नॉट थिंकिंग। अरे जो कोई बैंक नहीं दे रहा है, वी कैन कंसिडर बैंक एज द बेसिक पार्ट, जो इंटरेस्ट दे रहा है आपके सेविंग पे। मैंने कहा ना अभी कि डोंट कीप योर लार्ज अमाउंट ऑफ कैश इनटू योर हाउस होल्ड, डिपॉजिट इन द बैंक। अगर आपके बैंक में पैसा नहीं रखोगे नहीं तो इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। घर पे रखोगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो बैंक में रखोगे तो इंटरेस्ट मिलने वाला है। सो सम इंटरेस्ट इज गेटिंग जनरेटेड।
सो स्लो स्टेडी ग्रोथ क्रिएट्स लास्टिंग वेल्थ. हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ रहा है. बी विलिंग टू वेट. लेकिन अगर मैं वही पैसा, कोई बोलेगा हाँ मैं अभी तुमको 1 साल में डबल करके देता हूँ, बैंक आर नॉट ऑफरिंग सो मच ऑफ इंटरेस्ट रेट. Why are you believing someone who is offering such some fraudster schemes? है ना, कई लोग ऐसे उसमें डूब भी गए हैं. And they are now running into financial crisis because they had deposited their money on someone else's faith without understanding, without knowledge, without applying their own mind or brain. They invested their own money at someone else's confidence, which is very wrong. सोचा ही नहीं, कैसे देगा ये आदमी 1 साल में डबल करके, नहीं इसको दिया तो मेरे को मिलेगा. That is what I mean to say. Don't believe what others are doing. Analyze it, whether it is factual, whether it is good, then only invest. Because it is hard earned money. किसका पैसा है? तो आपका है. कौन डिसीजन लेगा? आप. अगर आपने फ्रॉडस्टर के साथ जाना तय किया है तो आपको क्या मिलने वाला है? फ्रॉड. पैसा नहीं वापस आएगा. You will be losing all your money and now you will be in financial crisis because the fraudster is in the legal tangle. तो वो तो नहीं देगा तुमको पैसा. So that is how we have to understand money. फ्रॉडस्टर्स के तात्काल सेवाएं मत लो, फाइनेंस में नहीं होता है. मैं तो कहूंगा जिंदगी में भी नहीं होता. लेकिन फाइनेंस तात्काल सेवाएं नहीं होता है. कोई बोल रहा है आपको डबल कर दो, नहीं होता है. प्लीज बी अवे फ्रॉम सच फ्रॉडस्टर्स. बी विलिंग टू वेट. तभी तो आप तय करोगे ना कि अरे हाँ मैं रुकूंगा. ट्रस्ट द प्रोसेस, सेलिब्रेट द प्रोग्रेस. छोटी छोटी प्रोग्रेस हर क्वार्टर अगर पैसा मिल गया सेलिब्रेट करो. वेदर इट्स इन्वेस्टिंग, बिल्डिंग अ बिजनेस और ग्रोइंग स्किल्स, स्टे द कोर्स. पेशेंस बिल्ड्स प्रॉस्पेरिटी. टाइम in time you will become rich. Respect that process. So put the laws into action. Whatever we have studied, discussed today, you have to put these in actions. Understanding the laws is not enough. You must live them. हाँ मुझे समझ गया तू क्या बोलना चाहता है, मैं समझ गया. नहीं, you have to live them. इसीलिए एक रिकैप करते हैं. Believe in the wealth. Create the value for that. Be financially very clear. Take control of your money. Leverage wisely. Invest करो. Keep growing. Build smart habits. छोटी इन्वेस्टमेंट हर महीने में करते जाओ. Add purpose. Stay patient. So friends, this series is not only for making money, but it is for you to understand that you grow, think rich, grow wise, and live freely. I sign off on this note, friends, and we meet again in another episode of Money Mindset Mastery with Vikas Doshi. Till then, bye bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one-time activity. Do enjoy.